First most important thing is the fuels we use. There are different kinds of fuels which we have. First, if we are talking about the states of solid, then there are three states. One, we can find fuels in the form of solids also. We can find the fuels in the form of liquid also, and gases also. So if we are talking about solid fuels, then first thing is the wood, which we used in our earlier days. In ancient time, wood are being used for cooking food and for creating fuels. Okay. After then, coal also used in several places nowadays also, and like the same thing, charcoal, etc., are also the source of solid fuels. If you're talking about liquid fuels, then kerosene, petrol, diesel, these are the fuels which are in the form of liquid. That's why, yes. Charcoal, it's this is the charcoal one. This it's a types of जिसको हिंदी में कोयला और कोल बोला जाता है, उसका कोल का ही एक टाइप का होता है, कोयला का ही टाइप का एक चारकोल होता है. ठीक है. ओके, तो इस तरह से अगर गैसेस का फॉर्म का बात करें तो सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन गैस, दिस ऑल आर द गैसियस स्टेट्स ऑफ फ्लूइड्स जो कि गैस का फॉर्म में रहता है. ठीक है. बट इसके बारे में इतना डिटेल्स आप लोग का है नहीं, सो नॉर्मली कुछ कुछ चीजें इंफॉर्मेशन है, बट स्टिल फॉर योर इंफॉर्मेशन यू शुड नो द फॉर्म्स ऑफ द फ्यूल्स. ओके, मेन टाइप्स ऑफ द फ्यूल्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों फॉर्म्स का जो है एक एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे कि जो कि हम लोग नॉर्मली अवेयर है जिसके बारे में. सबसे पहले गैस जो हम लोग घर में यूज करते हैं फॉर द कुकिंग, उसके बाद पेट्रोल और डीजल जो कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स में यूज करते हैं, or here the coal which there in the several factories, or even in earlier days for the train also we use this type of coals. Okay, now in this particular chapter there are three basic things which we will learn about. One is what the fuel is, another is eco-friendly fuels and their types and use, and then about the fossil fuels and their types and their uses. Okay, so let us learn one and one. First is all about the eco-friendly fuels. What this term eco-friendly means? Eco-friendly means which are friendly to the environment. Okay, which are good for the environment, which do not harm any harmful effect to the environment, or which has very less or minimum impact on the environment. So these type of any fuels are called the eco-friendly fuels. Okay, which especially we get from the naturally occurring materials, for example biogas or biodiesel. This type of things this type of things are called eco-friendly fuels. Okay, यहाँ पे solar plate also one of the very important examples of the eco-friendly fuels. After then, if you are talking about this wind generator, जिससे electricity produce होता है, that is also one type of the eco-friendly fuels which we use. Okay, sun जो है, this is especially one of the very important and most sources of energy. It can be in the form of fuels also, or this without this sun our earth will be not survive for even for small time also. अगर कुछ देर के लिए भी या ये सन जो है ये डिसअपेयर, मतलब डिसअपेयर नहीं बोल सकते हैं, डिसअपेयर तो नॉर्मली सन नहीं होता है, एक्चुअली अर्थ रोटेट होता है. तो अगर सन जो है ये वेनिस हो जाता है तो अर्थ तुरंत जो है वो आइस का एक गोला बन जाएगा, और यहाँ पे सरवाइव जो है कोई भी एनिमल्स नहीं कर पाएंगे, और टोटली एवरीथिंग विल बिकम आइस ओनली. तो ये सन के वजह से ही हम लोग का अर्थ जो है इस पे लिविंग बीइंग पॉसिबल है. ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो है इको फ्रेंडली फ्यूल्स जनरेट करने में हेल्प करते हैं.
इसमें कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग इको फ्रेंडली फ्यूल्स का बात करें तो सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, देन हाइड्रो एनर्जी है एंड टाइडल एनर्जी है। तो हाइड्रो एनर्जी वगैरह के बारे में हम लोग एक वीडियोस से अच्छे से समझेंगे, जैसे कि बताया था मैंने कैसे जनरेट होता है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का चैप्टर में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको लिखना है इल इफेक्ट ऑफ फ्यूल्स, मतलब फ्यूल जो होता है इससे हम लोग का क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है, स्पेशली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेट्रोल और डीजल टाइप ऑफ फ्यूल्स। ये हम लोग का हेल्थ में काफी इफेक्ट करता है, स्पेशली स्किन इरिटेशन में प्रॉब्लम होता है, आई इरिटेशन या डिजनेस या तो हेडेक जो है हम लोग का हो जाता है इस तरह का जो है पॉल्यूशंस की वजह से। ठीक है, फ्यूल्स में जो भी ये फ्यूल्स बर्न करने से जो भी एक गैस निकलता है, ये गैस जो है हम लोग के लिए बिल्कुल ही हानिकारक है और ग्लोबल वार्मिंग भी इसमें बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इस तरह से पार्टिकल होता है जो टोटली बर्न नहीं होता है, जैसे बाइक वगैरह जो या व्हीकल्स वगैरह जो भी चलता है, आप देखना कि वो जो है धुआं छोड़ती है, तो वो धुआं जो निकल के आता है दैट इज द अनबर्न पार्टिकल, जो वो जलता नहीं है। तो वो पार्टिकल, वो जो फायर है, वो मतलब जो स्मोक है, दैट इज वेरी डेंजर फॉर अस। ओके, और ये जो है हम लोग का एनवायरनमेंट में भी काफी वो जो है ग्लोबल वार्मिंग और या तो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने में काफी ये करता है। ठीक है, मदद करता है, पॉल्यूशंस बढ़ाता है। ठीक है, तो डीजल या पेट्रोल जो भी है ये हम लोग का लिए इवन जैसे बारिश जो होती है, ये इस पे भी जो वेदर कंडीशन चेंजेस में भी इसका काफी रोल रहता है। ठीक है, तो इसलिए अभी हम लोग को ज्यादा फोकस करना चाहिए बायो डीजल्स वगैरह में, और ये डीजल और पेट्रोल को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन भी होता है ना, ये भी हम लोग आप लोग को दिखाएंगे कि कितना डिफिकल्टली, मतलब जो सी होता है उसके अंडर में बहुत काफी डीप से कैसे निकल के आता है, कैसे निकाल के लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्यूल्स एग्जांपल्स दिखाया गया है, जैसे कि कोल हो गया या ऑयल हो गया या नेचुरल गैस हो गया, ये सारे जो है ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल्स। ओके, आफ्टर देन स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द बुक, some pointers related to the fuels it is given. So first point is what the fuel is, which we have learned yesterday also, ki it gives heat and light. And after then there are two types of what called fuels. One is eco-friendly, another is fossil fuels. So eco-friendly जो होता है, these do not cause any pollutions or harm to the environment. एंड ये जो होता है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब होता है इसको फिर से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल जो होता है दैट इज एक समय ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएगा और वी विल नॉट बी एबल टू क्रिएट एनी मोर, और कोई और उस तरह का जो फ्यूल्स होता है वो हम लोग को मिलेगा ही नहीं, ये रिप्लेनाइज नहीं होगा, मतलब इसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो दीज आर द सम थिंग्स अबाउट द फ्यूल्स। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं इको फ्रेंडली फ्यूल्स जो होता है इसके बारे में। बहुत सारा इको फ्रेंडली फ्यूल्स यहाँ पे एग्जांपल्स में जैसे दिया गया है, स्पेशली सोलर जो है ये बहुत इजी और बहुत सिंपल एग्जांपल्स है। ठीक है, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स का अगर बात करें तो यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी या तो पेट्रोल या तो कोल या तो नेचुरल गैस जो है, ये सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है सोर्स का और फॉसिल फ्यूल्स में आता है। ठीक है, इको फ्रेंडली के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया तो और ज्यादा इसके बारे में और नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसमें बुक में जो दिया गया है इसके बारे में एक बार समझते हैं कि once fossil fuels are discovered, they have to extracted, transported and processed for use. Their process causes environment damage. तो ये सारे जो इको फ्रेंडली फ्यूल्स जो होता है यहाँ पे बोला जा रहा है, ये फॉसिल फ्यूल्स जो होता है दीज आर एक बार जब इसको निकाला जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है और यूज कर लिया जाता है, इसको फिर से मतलब ये वो फिर डैमेज हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर से इसको रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। वी शुड ऑप्ट फॉर अल्टरनेट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब हम लोग का जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज इको फ्रेंडली फ्यूल्स जो होता है, इसको हम लोग को ज्यादा यूज करना चाहिए।
और ये जो है ये हार्मफुल इमिशंस नहीं करता है और नहीं पॉल्यूशंस बढ़ाता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। सोलर एनर्जी जैसे कि है ये बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि द हीट एंड लाइट एनर्जी जो है वो सन से ये क्रिएट करता है, और हम लोग जो सोलर एनर्जी है इसका यूज काफी सारा चीजों के लिए कर सकते हैं, इवन फॉर कुकिंग फूड और इवन ड्राइविंग द व्हीकल्स ऑल्सो। एज ऑफ नाउ अभी बहुत सारा इस तरह से टेक्नोलॉजी आया है जिससे जो है सोलर एनर्जी से भी व्हीकल्स जो है रन होता है, ठीक है। कुकर आ गया है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तो होता ही है, सभी को पता है, ठीक है। तो कैसे होता है इसके बारे में और डीपली हम लोग अगले क्लास में ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन सोलर प्लेट जो होता है इस तरह से होता है, ये सबसे पहले जानने का कोशिश कीजिए कि इससे सन से जो है रेज आता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और ये जाके घर में लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में एक वीडियो से अच्छे से और समझेंगे कि कैसे डैम से पानी जो है, पानी डैम में कैसे इस तरह से इकट्ठा किया जाता है और यहाँ से पानी जो है निकाला जाता है एक पर्टिकुलर टरबाइन में, और उस टरबाइन को घुमा के जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो एनर्जी जनरेट करने का मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग घर में स्पेशली जो लाइट वगैरह आता है दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ओनली, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स जो होता है इसमें पानी एक तरह से इकट्ठा किया जाता है और एक पर्टिकुलर ब्लॉक में जो है उसको फ्लो कराया जाता है, और जिसके कारण जो है एक इस तरह से रिजर्वायर क्रिएट होता है और वो एक टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन एक डिवाइस होता है इस तरह से जो आप लोगों को दिखाया जाएगा अभी, एंड इस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो जनरेट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी एक इमेज के द्वारा आपको समझाने का कोशिश किया गया है। जैसे कि ये डैम अगर है और यहाँ से पानी को फ्लो को दिया जा रहा है और यहाँ पे अगर आप एक फैन लगाओगे तो दिस फैन विल मूव, और ये फैन मूव होने के कारण यहाँ पे एक जनरेटर मूव होगा, और जनरेटर अगर मूव होता है तो इट विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे भी दिखाया गया है डायरेक्टली यहाँ पे फैन के साथ जो है ये जनरेटर को कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ से पानी जैसे ही इस इधर रिवर में जाएगा तो यहाँ से मूव करते समय ये टरबाइन को घुमाते हुए जाएगा, ठीक है। इसको टरबाइन बोला जाता है, और यहाँ पे इस तरह से डैम होता है, इसमें पानी को फॉलो किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बायोडीजल्स का कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, ठीक है। ये बायोडीजल्स स्पेशली हम लोग क्रिएट खुद कर सकते हैं और इवन किया भी जाता था पहले के जमाने में। आप लोग देखोगे काफी लोगों का घर में बायोडीजल्स क्रिएट होता है, तो उसमें भी एक चैम्बर हुआ करता था जहाँ पे जो भी बायो का जो वेस्टेज होता था वहां पे डाला जाता था और उससे गैस प्रोड्यूस होता था, और वो गैस प्रोड्यूस होता था, उस गैस से जो है इलेक्ट्रिसिटी या तो लाइट एनर्जी हम लोग को मिलता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स का अगर बात करें, कोल, ऑयल या नेचुरल गैस जो है इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। जैसे सी लेवल के अंदर काफी डीप में जाके कैसे जो है ऑयल्स को निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्रूड ऑयल के बारे में है। क्रूड ऑयल वही ऑयल बोला जा रहा है जो कि हम लोग का पेट्रोल या डीजल आता है, ठीक है। तो इस तरह का जो ऑयल होता है ये अर्थ का जो डीप सरफेस से निकाला जाता है। अर्थ का अंदर पे जो है काफी डीप ड्रिलिंग करके जो है नीचे से वो पानी के तरह का होता है, तो लिक्विड फॉर्म में उसको फाइंड आउट किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। और इसके बाद उसको पाइप से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज जो है ये पेट्रोलियम या डीजल या ग्रीस बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये सारी चीज को जो है पेट्रोलियम एंड डीजल आर यूज फॉर व्हीकल्स पर्पस ऑल्सो, सो व्हीकल्स में यूज किया जाता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता भी होगा। यहाँ पे कोल का अगर बात करें तो ये स्पेशली कोल का माइनिंग होता है। माइनिंग का मतलब होता है कोल भी बहुत डिफिकल्टली निकाला जाता है, मतलब इतना नहीं है कि इस तरह से कि मतलब माउंटेन टाइप का है वहां से काट के लाया जाता है। काफी डीप में जो है अंदर में होता है अर्थ के अंदर में, तो वहां पे माइनिंग किया जाता है, खोदा जाता है और खोद के अंदर में घुसना पड़ता है। अंदर घुस के जो है उसको उस तरह से कंस्ट्रक्ट करके काट काट के जो है निकाला जाता है, ठीक है। सो आई विल शो यू वीडियो रिलेटेड टू दैट आल्सो नाउ ओनली। और यहाँ पे दो तरह का जो है टाइप्स ऑफ कोयल्स होता है। एक होता है यहाँ पे लिग्नाइट होता है और एक होता है बिटमियस कोल, ओके। तो कोल यहाँ पे दो तरह का किया जाता है।
और यूज जो है कोल का यहाँ पे लिग्नाइट कोल जो होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स में जो है इसका यूज होता है। और बिटुमिनस सॉल्ट कॉयल जो होता है ये अच्छा क्वालिटी कॉयल होता है, जो कि रॉ में यूज करने के लिए स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज में जो है यूज होता है। घर में भी हम लोग जो है यूज करते हैं हीट जनरेट करने के लिए या कुकिंग करने के लिए या पानी वगैरह गर्म करने के लिए जो है कोल का यूज करते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस का अगर बात करें तो ये कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होता है, और इसका जो है यूजुअली ये फाइंड किया जाता है नॉर्मली क्रूड ऑयल जो होता है इसको जो है अर्थ सरफेस से निकाल के और उसके बाद इसको पाइप से ट्रांसपोर्ट करके इसका यूज होता है, ठीक है। ये हार्मफुल जो होता है, इट इज नॉट एज हार्मफुल एज एनवायरमेंट एज क्रूड ऑयल एंड कोल। तो क्रूड ऑयल एंड कोल के जैसा उतना पॉल्यूटेड नहीं है ये, लेकिन ये भी है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ कुछ जो है इससे रिलेटेड वीडियोस जो मैं बता रहा था उसको देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि हाउ द types of fuels it can be generated. Okay, so quickly showing you all. First we will move to the start with the हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कैसे जो है जनरेट होता है ये हम दिखाने का कोशिश करते हैं सबसे पहले।